So in agriculture, what is the scene when fertilizers are used? Most of the things are going to the um, uh, most of the things that are going in the water through the water flow, those are the fertilizers. उसके वजह से the plant life or the sea level gets disturbed due to fertilizers. Now I will tell you, I will just read it what is there on the screen. So some effects of global warming on agriculture. First one is loss of biodiversity in fragile environment. मतलब क्या, बायोडाइवर्सिटी लूज होती है इन फ्रगाइल एंड फ्रगाइल मतलब ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे यू कांट गेट अ परफेक्ट और द एनवायरमेंट इज नॉट सुटेबल, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है. You must have seen that because of high temperature, many birds die, many animals die, and so on. Loss of fertile coastal lands caused by raising sea levels. So sea levels की वजह से जो coastal area है which is able to reproduce or which is able to grow agricultural things, it gets lost because of agriculture. More unpredictable farming condition in the tropical areas. मतलब tropical areas मतलब ऐसी areas जहाँ पे it is मतलब high areas, वहाँ पे problem हो सकती है. Dramatic changes in distribution and quantities of fish and seafoods. अभी देखो, my parents mostly say that when we were small in the rainy season we used to get a lot of fishes and prawns in our local river, but अभी नहीं मिलती. क्यों? Because of the global warming. Then longer growing seasons in the cool areas, मतलब एक बार सीजन चालू हुई तो 6 महीने चलती है, whereas it has to be of the 4 months. Then increase in incidence of pest and vector borne diseases. अभी फर्टिलाइजर ज्यादा है तो उसके वजह से जो भी डिसीजेस क्रिएट हो रहे हैं, दोज आर द हायर नंबर. So long-term fluctuation in weather patterns could have extreme impacts on agricultural production, slashing crop yields, and forcing farmers to adopt new agricultural practices in response to altered conditions. Okay. Next is forestry. Now, what are the impacts of global warming on forestry? सबसे पहले we are going to see on the tropical forest. Tropical forest मतलब ऐसे forest जो high areas में situated है. So what happens? Moderate sun absorption मतलब उधर sun absorb हो जाता है. Sun rays obviously सब इधर they have shown moderate sun absorption and strong sun absorption. Then what happened? जब when sun rays fall, that time what happens? They accept it. Why? Because photosynthesis is the phenomenon used by the plants which requires light, and light किससे आती है? Light आती है sun से. So tropical forests have strong CO2 absorption and temperate forest have strong CO2 absorption. मतलब जितना ज्यादा वो लोग अंदर CO2 लेंगे उतना वो लोग बाहर ऑक्सीजन दे देंगे. So this is about forestry. Then water resources are there. How does the greenhouse affect the water resources? Now I will tell you what are the conditions occurred when the water resources take its way in the ग्रीन हाउस गैसेस. सबसे पहले तो फ्लड्स या फ्लड्स आते हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि उसकी वजह से पूरा वाटर साइकिल इम्बैलेंस होता है. फिर ड्रॉट्स आते हैं. ड्रॉट्स वाई टू ड्रॉट्स कम? क्योंकि व्हेन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर अकर्स, द सीन इज दैट इतना ज्यादा इवेपोरेशन हो जाता है दैट द लैंड गेट्स टोटली मतलब सूख जाती है पूरी, और सूखने की वजह से इट कॉजेज ड्रॉट. ड्रॉट को फेमाइन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे खाना पीना कुछ नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, बट पीपल हैव टू सर्वाइव. उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है. एग्रीकल्चर इज देयर, वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट एग्रीकल्चर. स्नो पैक इज देयर. वाटर रिसोर्सेज में स्नो इसलिए आया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से द स्नो पैक इज गेटिंग मेल्टेड, और उसके वजह से सब फ्लो हो रहा है. फिर रिवर फ्लो है. नाउ सी, स्नो पैक के बाजू में ही रिवर फ्लो इसलिए है क्योंकि when the snow melts down, what does it forms? It forms a river or a river का एक छोटा सा पार्ट बनाते. Like then groundwater is there. Now when the global warming affects, तभी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो अपने ग्राउंड में भी कोई पानी नहीं रहता, इसलिए उधर सूखा बताया गया है. फिर वाटर यूज इज देयर, वाटर क्वालिटी गेट्स डिस्ट्रॉयड, डेल्टा लेवल्स get changed and habitat also change.
नाउ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड और वाटर को इफेक्ट कर सकता है ना. आई रीड इट फॉर यू. ग्लोबल चेंज ड्राइवर्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम चेंजेस. नाउ व्हाट आर द ग्लोबल चेंज ड्राइवर्स, मतलब क्या चेंज होता है. क्लाइमेट गेस चेंज, डिस्टर्बेंस होती है इन रेजिम्स बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर एंड ऑल. नोवेल असेंबलर्स एंड लैंड यूज चेंज. नाउ व्हाट इज लैंड यूज चेंज. लैंड यूज चेंज एक ऐसा सीन है जहाँ पे आज अगर यू आर ग्रोइंग राइस देन आफ्टर 2 or 3 years यू हैव टू ग्रो wheat. Why? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूट नहीं होता. फिर डिटेक्शन है. डिटेक्शन में आता है सर्वे, इन्वेंट्री एंड मॉनिटरिंग. एट्रीब्यूशन में आता है स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, कंसिस्टेंट विद प्रोसेस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, unlikely natural variability. Then multiple experiments are occurred which consist of warming, rain out, CO2, nutrients, biotic interaction और उसके mechanisms है coordinated distributed experiment, natural experiment. Then multiple models are there where there are multiple factors included. जहाँ पे आएगा distribution, population, community, landscape, ecosystem, DGVM, and उसका verification कैसे करते हैं. Paleo record, sensitivity analysis, and through the experiment. Now the main thing is there. How does it affect the human health? Yeah. Now how does it affect the human health? अभी अगर सीवियर वेदर होगा, मतलब बहुत सारा वेदर एकदम चेंज हो गया, सीवियर हो गया, मतलब ऐसा वेदर जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके वजह से इंजुरीज होते हैं, फैटलिटीज होते हैं, मतलब लोग मर भी सकते हैं, और मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं. फिर एयर पोल्यूशन. ना एयर पोल्यूशन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस थिंग्स. अस्थमा होता है, या अस्थमा होता है. फिर कार्डिक वास्कुलर डिसीजेस, मतलब हार्ट अटैक बोल सकते हैं, या फिर बाईपास की जो सर्जरी करने होती है वो हो सकता है. सो दिस कम अंडर एक्सट्रीम वेदर एंड चेंजेस इन वेक्टर इकोलॉजी. वेक्टर इकोलॉजी मतलब ऐसा कुछ तो जहाँ से एक कोई तो थिंग, मतलब एक कोई तो थिंग इधर से उधर वो ट्रांसफर करता है. जैसे मलेरिया इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटोज, डेंगू इज आल्सो कॉज्ड बाय द मॉस्किटोज. Hanta virus, you must have heard during the coronavirus, the Hanta virus had also come in the after coronavirus, but it got vanished soon. Rift Valley fever, Lyme diseases, chikungunya, new Nile virus. So these are all the viruses that we have seen about. Then when the sea level gets rise, what happens? Increasing allergens, which causes respiratory allergies and asthma. So respiratory allergies क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग सी लेवल के बाजू में होते हैं तो ह्यूमन सो द वेदर इज ह्यूमिड, उसके वजह से हमको अस्थमा हो सकता है या रेस्पिरेटरी एलर्जीज हो सकते हैं. या वाटर क्वालिटी इम्पैक्ट, मतलब इफ वाटर क्वालिटी चेंजेस और इफ वाटर क्वालिटी गोज लो देन व्हाट कैन हैपन. cholera, okay, there are we say typhoid and so on. Then harmful algal blooms, मतलब उसकी वजह से हमारे हाथ पैर पे रैश आ सकते हैं, we may have hair fall and so on. And if CO2 level increase, what will happen? Malnutrition will happen, क्योंकि उससे फूड हमको ज्यादा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा. देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, जिसके वजह से सिविल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्योंकि एनवायरमेंट खराब होता है तो फिर आजू बाजू का एटमॉस्फेयर भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. और अगर एक्सट्रीम हीट होंगी तो हीट रिलेटेड इलनेस जैसे कि रैश, स्किन कैंसर, फिर कार्डियोवास्कुलर फेलियर एंड सो ऑन. सो इन दिस ऑल वी हैव सीन दैट the effects on agriculture, forestry, water resources, human health, and last one is the economic consequences. Now I will look at the diagram, I will look at the figure, and you also try to visualize it. Relationship between the economic impact on historical global warming and temperature, wealth, and cumulative carbon emissions. So first figure is there, that is for the temperature. Yeah, the first graph is there, that is for the temperature. Second graph is there, that is for the GDP. GDP matlab economy, wealth you can say. And third is the cumulative carbon emissions, matlab carbon emission ke bare mein. So what we are seeing that the temperature is decreasing but its rate is increasing. Yeah, टेम्परेचर फ्रॉम जहाँ पे जीडीपी ज्यादा है वहां पे टेम्परेचर कम था, विच वॉज मीन टेम्परेचर वॉज 5.
फिर slowly it is reducing its graph. उसके बाद GDP है. अभी GDP का जो रेशियो है that is uneven. We are not understanding it if it is increasing or no, but mean temperature जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे GDP कम कम होते जा रहा है. फिर उसके बाद CO2 का पर कैपिटा जो है it is also having the same thing. जैसे mean temperature बढ़ रहा है वैसे per capita CO2 भी बढ़ रहा है. So now these are all the things which we have studied due to the effects of global warming. Those are effects on ocean, sea level, agriculture, forestry, water resources, terrestrial ecosystem, human health and economic consequences. There are multiple things to be studied in this chapter. So we are going to study in the next lecture. Have a good day. Goodbye. Hello everyone, how are you all? I hope you all are having an amazing day. So we are on with chapter number 7, that is global warming, and we have seen half of the lesson in our previous video. Today we are going to finish our this lesson by seeing the next point. So in the last lecture we had seen introduction, the greenhouse effect, the greenhouse gases, overview of greenhouse gases in the year 2018, effects of global warming, and effects on ocean, effects on the sea level, effects on agriculture, effects on forestry, effects on water resources, effects on terrestrial ecosystem, effects on human health, and also the economic consequences. So these all are the slides which we have already done in our past lecture. So now today we are going to see the further part, that is measures to control global warming. Now global warming is something which is coming from the greenhouse gases. So major gases whichever are there, I will read it once again for you, the major greenhouse gases. These are the water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, CFC and ozone. So the water vapor comes from the process of evaporation. Later on, the carbon dioxide comes mostly from the human's respiration, or you can say even vehicles. The methane also comes from the vehicles, the black gas which comes from the vehicles due to petrol, you can say, due to CNG, you can say, or due to diesel, you can say, that also come from the um, vehicles, the pollution. Then the oxide is an important component that comes from the industries. Okay, so industries, big chimneys are there, and that's why the chimneys are high. So it directly goes in the atmosphere, doesn't mix up with the air which we are breathing. Then CFC is present in the cool substances like the ACs and the refrigerator, and also the ozone, which is the gas which is due to the reflecting of the UV rays. So how to stop or control global warming? Now see, in this world which we are living today, the technical world, it is very important to stop global warming because we all are dependent on the vehicles. We all are the, you can say, Katputli of the vehicles. So you तुम लोग नहीं स्टॉप कर सकते उसको, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल इट. हाउ यू कैन कंट्रोल इट? सबसे पहले तो रेड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, मीथेन बोलो, CFC बोलो, या फिर वाटर वेपर थ्रू जो होता है वो. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन reduce. You can reduce the carbon dioxide. How can you reduce the carbon dioxide? Obviously you can reduce the carbon dioxide by running less vehicles, and the means you can वॉश योर व्हीकल्स. उसका जो ट्यूब या पंप रहता है, या उसका जो आउटलेट रहता है गैसेस का, उससे तुम लोग reduce कर सकते हो. Then reducing the use of fossil fuels. Now what is fossil fuels? Fossil fuels directly implies, or directly it indicates to the पेट्रोल, डीजल एंड CNG. CNG को जरा साइड में ही रखते हैं. Let us concentrate on petrol and diesel. Also coal will come in this.
So what is there in this कि जब भी हम लोग अपने vehicles चलाते हैं, जैसे कि you can say car, or you can say truck, or you can say scooter, or you can say bike, or you can say any rickshaw, तो उसमें जो फॉसिल फ्यूल लगता है जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल एंड सिमिलर थिंग्स, सो वो जो है पेट्रोल और डीजल, उसको हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे गाड़ी की मशीन चलती है, इट स्टार्ट्स वर्किंग, and when it starts working, it releases the black color carbon dioxide, or you can say any other gas, which is responsible for creating the greenhouse gases. So that's why the use of fossil fuels should also be reduced. Also reforestation. What is forestation? Forestation मतलब पेड़ लगाना, या like you can say प्लांटिंग नंबर ऑफ ट्रीज. अगर समझो हमने किधर पेड़ काट दिए, जिसको डिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं, फॉरेस्टेशन का अपोजिट है डिफॉरेस्टेशन, एंड फॉरेस्टेशन का वन स्टेप अहेड है रिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन से व्हाट विल हैपन, डिफॉरेस्टेशन से सब जो पेड़ है वो काट देते हैं. सो रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, समझो अगर 1 एकड़ लैंड है, उसके अगर पेड़ हमने काट दिए, तो दूसरा किधर भी 1 एकड़ लैंड लेके उधर नए पेड़ लगा. दिस विल बी रिफॉरेस्टेशन. सो द मेजर्स टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग में रिफॉरेस्टेशन भी आता है. ओके, सो लेट अस सी वंस अगेन मेजर्स टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग: reducing carbon dioxide, reducing the use of fossil fuels, and reforestation. Along with this, along with this slide, there is a photo also. मतलब एक छोटी सी इमेज है नीचे, उधर वन साइड में लिखा है टू द राइट साइड, हाउ टू reduce द ग्लोबल वार्मिंग. तो एक आदमी है पीछे की तरफ, वो पेड़ लगा रहा है, राइट, कैन यू सी दैट? सो दैट इज ओनली रिफॉरेस्टेशन. फिर इधर है एक आदमी है, वो कचरा अपना डाल रहा है, और उधर रिसाइकल लिखा. व्हाट इज रिसाइकल? रिसाइकल इज द यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन अ गुड वे. जिसे भंगार वाले करते हैं, अपने पास से कूड़ा कचरा लेके जाते हैं या ऐसी चीजें जो यूज में नहीं है, और जब भी वो वापस ये करते हैं, जब भी वो वापस यूज करते हैं, दैट टाइम इट कम्स आउट टू बी अ प्रोडक्टिव थिंग. फिर है यूज लेस हॉट वाटर. फिर है चेंज अ लाइट बल्ब. आई टेल यू व्हाई यू शुड चेंज अ लाइट बल्ब. क्योंकि लाइट बल्ब में वैट्स बहुत ज्यादा लगते हैं. लाइक अभी मैं जिस ट्यूब के नीचे बैठी हूँ, दैट इज 40 वैट्स, या आई एम सॉरी, दैट इज 20 वैट्स और सिमिलर थिंग. और जो बल्ब है दैट इज 40 वैट्स. सो वो डबल पावर लेता है, पर अंधेरा उससे रहता है, एंड we don't even feel good now whenever we sit under a bulb. So change the bulb, use another LED bulbs instead. Then switch, use the off switch. Use the off switch मतलब अगर कुछ यूज में नहीं है, suppose if I am sitting in this room now when I will go inside to my bedroom or to my kitchen, so जब भी मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगी, I have to switch off the light and I have to switch off the fan as well. Why? Because you should use the resources carefully. उसी की वजह से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे the global warming will be controlled. Then how you can stop global warming? Yeah, it is not, I am telling you once again, it is not easy to stop the global warming, but how you can control? So speak up. जैसे मुझे मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हुई होती है, तुम्हें नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है, तो आई एम टॉकिंग टू यू, या आई एम टॉकिंग टू यू कि तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग वैसा करो, तुम लोग ये मत करो, तुम लोग वो करो. सो आई एम स्पीकिंग अप टू यू. या without speaking up you can't convey your messages to anyone, and when you can't convey your messages to anyone, it becomes very difficult to share our thoughts. And when it becomes difficult to share our thoughts, we can't tell the person कि तुमको ये करना है या ये नहीं करना है. So you should speak up whenever it comes, not only about global warming but also about other things also. जैसे pollution के बारे में you should speak up, population के बारे में you should speak up,
देन वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में यू शुड स्पीक अप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यू शुड स्पीक अप, then you can also speak up about different things, political rights, but you should be very sure कि जो भी तुमको नॉलेज है वो एकदम सही हो। अगर तुमको ही सही नॉलेज नहीं है एंड इफ यू आर गोइंग टू इम्पार्ट इट टू समवन, इट इट मेक्स योर कैरेक्टर नेगेटिव, बिकॉज अगर तुमको उसकी नॉलेज नहीं है यू डोंट हैव द राइट टू स्पीक। So study and speak up. I will tell you from my side that study and then speak up, because environment is a open topic. It is an open topic. जितना भी बोल सके उतना कम है environment के बारे में। Now I will tell you something. Some other person will tell you something. Third person will tell you something. Fourth person will tell you something. तुम्हारे घर में कुछ अलग बोलेंगे, तुम्हारे friends कुछ अलग बोलेंगे, फिर तुम कुछ अलग सोचोगे. All is about environment. But eventually what we have to do, we have to protect the environment, and we have to also protect the ozone layer. After that, power your home with renewable energy. Now what is renewable energy? मतलब एक energy जो वापस वापस use कर सको. Now like you can say अभी बैटरीज आए, बैटरीज मतलब जिसको हम सेल बोलते हैं, वो बैटरीज कैसे आए कि अभी बैटरी यूज करो और फिर वो चार्ज करो. So that is renewable energy. Then inverter is there. What you should do, you should मतलब इन्वर्टर में क्या होता है, बैटरीज होते हैं, फिर वो वाटर लेवल होता है, उस वाटर लेवल को मेंटेन करो. अगर तुम लोग उस एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर दोगे then it will cause a destruction to your equipments. So power your home with renewable energy. दूसरी बात ऐसी, मतलब अगर तुम लोग बैटरीज यूज कर रहे हो तो वो अगर खत्म हो गए तो फेंक के मत डालो. ट्राई टू रिसाइकल इट. या मतलब you can't recycle it on your own, but you can do it from your you can give it to someone to recycle. अभी देखो, power your home with renewable energy. Now I will take into consideration water. Okay, देखो एक जापान में या चाइना में एक बहुत अच्छे सिस्टम है कि जो भी तुम पानी अपने हाथ धोने के लिए यूज करते हो, लाइक फॉर वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर योर मील और एनी पर्पस, जब भी तुम लोग हाथ धोते हो तो वो पानी जाएगा तुम्हारे फ्लश में. या और फ्लश में वो पानी जाने के बाद वेन एवर यू आर फ्लशिंग द commode, or you can say whenever you're flushing your washroom, that water which we have already used for washing our hands will be used to wash our waste product as well. So means what, एक एनर्जी है उसको हमने यूज की, मतलब वाटर एनर्जी और वाटर टू वॉश अवर हैंड्स. तो एक काम हो गया. अभी जो पानी हाथ धोने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी वो तो गंदा पानी हो गया, कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, बट टू डिस्कार्ड अवर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ मतलब ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि पानी अच्छा ही चाहिए या कुछ. सो दे यूज द ब्रेन, कि मतलब जहाँ पे बड़े बड़े ये है, बड़े बड़े फंक्शंस है, वहाँ पे पानी कम है, तो व्हाट दे डू, दे कीप द हैंड वॉशिंग स्टैंड क्लोज टू द कमोड, और वो पानी फिर उधर जाता है, एंड whenever someone flushes it you can use it. Okay. Third is weatherize. Weatherize मतलब pay attention how the weather is and keep as much as you can, मतलब अच्छे से वेदर माहौल बना के रखो so that you can do it in a good way. या फिर इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस. ना एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस मतलब अभी देखो बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, CFL बल्ब्स चले 40% ज्यादा, चले 60% ज्यादा, फिर LED ट्यूब्स चले 20% ज्यादा, एंड व्हाट्सएवर. देन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस मतलब सोलर एनर्जी भी आएंगी उसमें, क्योंकि सोलर एनर्जी इज द मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी. जितना सोलर एनर्जी हमको देती है उतना हम लोग अगर यूज करेंगे तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड ऑफ एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी. So invest in energy efficient appliances, for example CFL, for example solar energy, and also for example water energy. Now I'll tell you, there is Chauta Tappa in Konkan, sorry, not Konkan, Sahyadri areas. There is a Chauta Tappa in Koina.
ओके, सो कोयना में क्या करते हैं देखो, वाटर कम्स फ्रॉम अपसाइड बिकॉज जो पानी है, कोयना का पानी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट भी यूज करती है, एंड कोयना का पानी सातारा सांगली वो डिस्ट्रिक्ट भी यूज करते हैं। बट यू नो व्हाट इज द सीन, कि पानी जो यूज होता है वो हमारे इधर चौथा टप्पा है, पहला टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा होके चौथा टप्पा आता है। यू मस्ट बी नोइंग दैट 1 2 3 4, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। सो पहले टप्पे पे वो पानी यूज होके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रेडी करके सेकेंड टप्पे पे आता है, फिर वो यूज करते थर्ड टप्पे पे आता है, फिर वो यूज करके फोर्थ टप्पे पे आता है, फोर्थ टप्पे पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मीन्स एक ही वाटर फ्लो, एंड इट इज गिविंग राइज टू 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। सो दिस इज एनर्जी एफिशिएंट, मतलब एक ही चीज है पर वो एक चीज हम लोग 4 बार यूज कर रहे हैं। इजंट इट एन अमेजिंग थिंग दैट वी आर इन्वेस्टिंग अवर नॉलेज सो गुड, एंड दैट्स व्हाई देखो, दैट्स वाई जब भी कोयना में पानी ज्यादा होता है तो हमको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि कोयना का 4 टप्पे है। तो अगर समझो कभी हो ना ऐसा, बट अगर समझो कुछ हो गया तो इट विल फ्लो अस, टोटली इट विल फ्लो अस। या दैट्स व्हाई आई वांट टू से दैट यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। अभी एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आएगा, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट। तो अप्लायंसेस मतलब ऐसी चीजें जो हम डेली यूज करते हैं, लाइक आई सेड यू, ऐसा मिक्सर यूज करो जो कम साउंड जनरेट करेगा, उसके वजह से क्या होगा, एक एनर्जी रिसोर्स कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। देयर आर मेनी मल्टीपल थिंग्स, सीएफएल यूज करो इंस्टेड ऑफ बल्ब्स एंड सो ऑन। Reduce water waste, most important thing. In the water cycle lesson we have already seen that कितना पानी है इस दुनिया में, that is 79%, but we are not getting even 1 single% to use for our personal thing. इतना कम पानी हमको मिल रहा है, वो भी हमको मतलब सबको यूज में आ रहा है। बट द मेन मोटो ऑफ सेइंग इज रिड्यूस वाटर वेस्ट, बिकॉज ऐसे बहुत सारे एरियाज है इन अवर कोंकण, और कोंकण के बाहर भी, मोस्टली कोंकण इज फ्लरिश विथ ईच एंड एवरी सोर्स, बट कोंकण के बाहर ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे पानी बहुत कम है। सो लातूर वगैरह एरिया में जब भी एंड ऑफ समर सीजन रहता है तभी बहुत ज्यादा पानी की कटौती होती है। दिस शुड नॉट हैपन टू यू एंड दिस शुड नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, दैट्स व्हाई reduce water waste. Actually eat the food you buy and make less of it meat. Actually eat the food you buy and make less out of it meat. Means what? Whatever food you are taking, अभी देखो बहुत सारे हम लोग शादियां भी देखते हैं। Let us come to the food which we don't buy. शादियां है हमारे इधर होती है, सो सपोज एक रो बैठ के उठा, उसके बाद एक टब भर के, मैं तो कम साइज दिखा रही हूँ, एक बहुत बड़ा टब भर के वेस्ट निकल आता है। Why is that so? क्योंकि फ्री का फूड है, खाओ नहीं तो फेंक डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। बट eat the food, eat the food, that is the most important thing. I take care of my family that हमारा food waste ना हो, you also take care of the family that तुम्हारा भी food waste ना हो। So eat the food and don't make it less of a meat, मतलब जो भी खाना हो उसको चिकन मटन समझ के खा जाओ, and make it useful for your body. Okay, understanding? Don't think that ये food अच्छा नहीं है, ये taste नहीं है and so on, because everyone has the matter of taste in their tongue, taste buds should get satisfied. But ग्लोबल वार्मिंग की वजह ये भी है कि हम लोग कितना भी वेस्ट करेंगे फिर उसको जलाना पड़ता है, उसके वजह से पोल्यूशन होता है, उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग, एज सिंपल एज दैट। देन बाय बेटर बल्ब्स। नाउ बेटर बल्ब्स आई हैव ऑलरेडी सेड यू इन दिस फिगर दैट शी इज चेंजिंग द लाइट बल्ब। मतलब क्या, जो बल्ब ज्यादा वॉट वैट पावर की है उसको निकाल दो और बेटर बल्ब यूज कर दो।
पुल द प्लग्स, पुल द प्लग मतलब जो भी प्लग तुमको यूज में नहीं है उसको तुम लोग निकाल के बंद कर दो। ओके, क्योंकि अगर यूज में नहीं है देन देर इज नो पॉइंट इन कीपिंग इट ऑन। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने फोन चार्जिंग को लगाया, फोन चार्जिंग हो गया, फोन निकाल दिए और चले गए, और जो बटन चालू था वो चालू ही रह गया। या सो दिस शुड नॉट हैपन। Okay, so these are few of the control measures to stop global warming. Again, I'm telling you, it is not 100% possible to stop the global warming, but we can try our best to minimize it. Then ozone layer depletion, very important point, ozone layer depletion. Ozone layer depletion occurs when chlorofluorocarbons and halogen gases formerly found in the aerosol spray cans and refrigerants are released in the atmosphere. Now see here, coolant होते हैं, coolant मतलब रेफ्रिजरेटर्स, वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें एक ऐसा कुछ तो होता है जो हमारे जो हमारे यू कैन से हमारे एटमॉस्फेयर में CFC फैलाते हैं। व्हाट इज CFC? CFC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ three elements, that is chlorine, fluorine and carbon, and these three are very much connected to the ozone layer depletion. So chlorofluorocarbons and halogens जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल्स में जब ऊपर जाते हैं और ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स इतने कनेक्टेड होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और जब भी ब्रेक डाउन करते हैं तभी क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कम होती है ओजोन लेयर की। इसके वजह से यूवी रेस का इफेक्ट डायरेक्टली हमारे बॉडी पे चला हो जाता है, और यूवी रेस का इफेक्ट डायरेक्टली हमारे बॉडी पे आ जाने के बाद वी कैन गेट स्किन कैंसर, or we can get rashes, we can get pollens, or we can get multiple things. So ozone layer depletion is a very important thing. We have already seen about ozone layer depletion in the past lecture. I'll show you this. ये जो कवरिंग दिख रही है ना, जो ऐसा ट्रांसपेरेंट कवरिंग, that is ozone layer. Yeah, that is atmosphere, ozone layer, anything you can say. Now see here one more figure is there about ozone layer depletion. That is सन है, वो रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट वो रेडिएशन मतलब सन रेज प्रोवाइड कर रहा है। नीचे अर्थ है, अर्थ के बाजू में एक लेयर है विच इज थिक लेयर, दैट इज द एटमॉस्फेयर, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलर गैसेस आते हैं, एंड उसके बाजू में है ओजोन लेयर। सो जहाँ पे रेडिएशन पड़ रहा है उधर से अल्ट्रावायलेट रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, और नीचे से भी गैसेस ऊपर जा रहे। कौन से गैसेस? ये वाले, आई शो यू। ये तो ये वाले गैसेस जब भी ऊपर जाते हैं तभी होता ऐसा है कि जो ओजोन लेयर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। कैन यू सी द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ओजोन लेयर? ओके, उसको ओजोन होल भी बोलते हैं। तो ओजोन होल एक बार होने के बाद इट कम्स टू अस, और वो दिन दूर नहीं है कि पूरा ओजोन होल मतलब पूरा ओजोन लेयर ही चला जाए, एंड देन every person of the world will be suffering from skin cancer, some will be suffering from rashes and similar, and tanning of skin is so there only, that if you are going in the sun rays with less, मतलब अगर समझो मेरा इतना हाथ खुला है तो ये हाथ मेरा काला पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ टैनिंग जो होता है ओजोन होल के वजह से या एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट के वजह से। देन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। नाउ ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से देयर आर टू इफेक्ट्स, एक इफेक्ट जो नीचे होता है, एक इफेक्ट जो ऊपर होता है। तो नीचे वाला इफेक्ट क्या होता है कि लोकल एयर पोल्यूशन होता है, मतलब जो लोकल एयर है वो पोल्यूट हो जाती है। जैसे नाउ यू नो दैट इन दिल्ली इन द विंटर सीजन you are not able to see anything that is in front of you. It becomes literally so difficult that गाड़ियां एक दूसरे को ठोक जाती है क्योंकि उनको दिखाई ही नहीं देता कि सामने कोई है या नहीं है। So local air pollution हो जाता है, and then comes the global air pollution which is dangerous than local air pollution. अभी समझो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खुद से कर रहे हैं और उसका हमको इफेक्ट मिल भी रहा है।
बट थिंक अबाउट द एंटार्क्टिका, आर्कटिक ओशन और आर्कटिक सर्कल, उधर ऐसा सीन है कि उधर तो गाड़ियां चलती भी नहीं है, पर ग्लोबल इफेक्ट की वजह से वहां का आइस इतनी जल्दी मेल्ट हो रहा है, इतनी जल्दी मेल्ट हो रहा है कि सब वहां का जो बर्फ है वो पानी पानी हो रहा है। एंड व्हेन पानी पानी हो जाएगा तब भी हमारी पूरी जो अर्थ है, अभी जो है हमारे पास अर्थ, वो पूरी पानी से भर जाएंगी। सो इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द local air pollution, but it also affects the global air pollution. So local air pollution का impact is less, whereas global air pollution का impact is more and more serious, dangerous, you can say. Now, effects of ozone depletion. Effects of ozone depletion for humans and environment. Ozone layer depletion causes increased UV radiations levels at the Earth's surface, which is damaging human health, marine life and agriculture. मतलब ओजोन डिप्लीशन मतलब क्या कि यूवी रेज जो है, जो हमारे हमको सन से आते हैं, सी ना, वेयर वी आर कंसिडरिंग दैट सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और सन अकेला ही सब एनर्जी को इनफ है, वैसे ही सन के सम हार्मफुल रेज लाइक द यूवी रेज वो क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर को रिपीटेडली डिप्लीट कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। सो क्या डैमेज हो रहा है, फर्स्ट वन तो ह्यूमन हेल्थ डैमेज हो रही है। ह्यूमन हेल्थ कैसे डैमेज हो रही है, ह्यूमन हेल्थ इस वे से डैमेज हो रही है कि अभी समझो ह्यूमन हेल्थ इज अंडर द ओजोन होल, तो उसको स्किन कैंसर हो जाएगा, मे बी उसको थ्रोट कैंसर हो जाए, क्योंकि जबान पे अगर वॉट एवर हैपन्स देन इट विल डायरेक्टली गो इनसाइड अवर नेक, जिसकी वजह से थ्रोट कैंसर हो जाएगा। डैंड्रफ भी होते हैं, हेयर फॉल होता है, मल्टीपल थिंग्स, बट द थिंग्स विल बी आउटसाइड, सो इट कॉजेज द डिप्लीशन इन द ह्यूमन हेल्थ और डैमेजेस द ह्यूमन हेल्थ। फिर मरीन लाइफ इज देयर। नाउ मरीन लाइफ इज देयर, मरीन लाइफ मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मरीन के अंदर है, सी के अंदर है, ओशियंस के अंदर है, उसकी वजह से भी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स ही अगर पिघल रहे हैं तो उधर के जो मरीन एनिमल्स है, स्पेसिफिकली पेंगुइन्स, दे आर नॉट हैविंग एनी होम नाउ, तो उसकी वजह से the effects of ozone layer depletion cause a huge effect on the human life. Now, agriculture is there. Now, since the sun rays are coming so badly and so effectively, UV rays इतनी ज़्यादा आ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर है ना, सारे क्रॉप्स को बर्न कर देती है। ओके, बर्निंग अकर्स ड्यू टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसके वजह से वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्रॉप्स दैट फार्मर्स प्रोवाइड, इसलिए कुछ कुछ क्रॉप देखो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो मेजर्स टू प्रोटेक्ट द ozone layer. So how can we protect the ozone layer? Same thing which we have studied here. How we can stop the global warming? Same to same ditto, we can stop the ozone layer depletion. So avoid the consumption of gases dangerous to the ozone layer due to their content or manufacturing process. Minimize the use of cars. Do not use cleaning products that are harmful to the environment and to us. Buy local product. ये buy local product इसलिए दिया गया है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत गाड़ियाँ लगती है, बहुत गाड़ियाँ लगने के बाद बहुत सारा पेट्रोल लगेगा, बहुत सारा पेट्रोल लगने के बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा और हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होते जाएगा. दैट्स व्हाई दे हैव सजेस्टेड दिस थिंग. Now acid rain. Now you know the process that sun absorb करता है वाटर को इवापोरेशन के थ्रू, बट समझो अगर ऐसी जगह से इवापोरेशन हो जहाँ पे पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, सो ऑब्वियसली जो ऊपर जाएगा इवापोरेशन के थ्रू वो नीचे आते वक्त मतलब वैसे ही आएगा ना जैसे ऊपर गया है. The clouds have the ability to filter the water and send it down, but it can't filter up more than its extent. इसलिए acid rain is a rain or any form of precipitation
that is unusually acidic, meaning that it has evaluated levels of hydrogen ions. Okay, it can be harmful. It can have harmful effects on plants, aquatic animals, and infrastructure. Now I will tell you the figure which is there downside. देखो इधर कंट्री कंपनी है, सो कंपनी से बहुत सारे गैसेस निकल रहे, कैन यू सी वन वन दिया हुआ है, सो दोज आर ऑल द गैसेस. फिर उसके बाद क्या होता है, पानी ऊपर चला जाता है, मतलब इवेपोरेशन होता है और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद क्या होता है, बारिश लगती है. सो बारिश नहीं लगती, देखो एक साइड ऐसे दिया है कि पानी गिर रहा है, एक साइड ऐसे दिया है कि हेल स्टोन्स गिर रहे हैं. हेल स्टोन्स मतलब इसे ना दगड़ फ्रॉम द मतलब क्या उसको वर्ड बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो गिरते हैं. सो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. और वो पानी जो फ्लो होके अपने नदी वगैरह में आता है. सो इसके वजह से एसिड रेन्स हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, यू नो व्हेन शाहजहां बिल्ड ताजमहल, इट वाज मार्बल वाइट इन कलर, मतलब बहुत सफेद था वो. और सफेद होने के बाद अभी उसके बाजू में कुछ तो हुआ था, एक कंपनी खड़ी हुई थी जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा, मतलब उधर से चिमनी से बहुत ज्यादा ये निकल रहा था, वोटिकन से पोल्यूशन निकल रहा था. एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, जो व्हाइट कलर का ताजमहल था वो अभी उसके थोड़े थोड़े साइड्स येलो कलर के हुए, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ SO2. SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज ड्यू टू पोल्यूशन and also due to the industry. So acid rains not only have the harmful effects on plants and animals but also on the infrastructure. Now effects of acid rain, see here you can see acid, smoke, chemical, clouds, snow, atmosphere, industry, pollution, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के. यू कैन टेक इट वन बाय वन. मेजर्स टू कर्ब एसिड रेन मतलब स्टॉप. पहला तो है एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब जो भी एनर्जी अननेसेसरी है उसको स्टॉप कर दो. उसको स्टॉप करने के अलावा यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू स्टॉप द एनर्जी विच इज नॉट एक्चुअली इन यूज, कंजर्व द एनर्जी. देन नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग एक ऐसा फायदा हो सकता है कि बिल्कुल भी गाड़ियाँ कुछ भी एमिट नहीं करेंगी पोल्यूटेंट्स, जिसके वजह से यू कैन इजीली स्टॉप द पोल्यूशन on use of fossil fuels, and thus you can get the proper rain, not the acid rain. फिर है अल्टरनेटिव फ्यूल्स. अल्टरनेटिव फ्यूल्स मतलब क्या, एक बार हमने पेट्रोल और डीजल यूज करने लगे हम लोग, तो कभी ना कभी तो वो खत्म होने वाले हैं. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देख के यूज अल्टरनेटिव फूड लाइक CNG गैस, यू कैन से, और मल्टीपल थिंग्स लाइक चार्जिंग वाली गाड़ी आई है, एंड सो ऑन मल्टीपल थिंग्स आर देयर, you can use them. So today in this lecture we have seen measures to control the global warming, how you can stop global warming, ozone layer depletion, then effects of ozone depletion, measures to protect ozone layer, acid rain, effects of acid rain, and measure to curb or stop the acid rain. So successfully we have completed our chapter number 7. Hope to see you in the next period. Study well, be safe. Goodbye. Thanks for joining.